लेकिन all it's doing is it's just describing our older problem, a simpler version of our older problem. Older problem तो exact count मांगती थी, अब आपसे पूरा count नहीं मांगा जा रहा, आपसे बस एक लिमिट मांगी जा रही है। तो अब पूछा जा रहा है कि अगर ये क्या, ये लिमिट क्या ये इज दिस, does h of n satisfy this lower bound, is h of n greater than a certain value। और अब कहा जा रहा है कि इसका डिसाइडर नहीं बनाएंगे आप इसका रिकग्नाइजर बनाएंगे। A recognizer is a weaker form of a Turing machine than a decider. Why? Because a recognizer has the ability of it doesn't have the computation ability to always say yes or no। वो yes अगर होगा उसके अंदर तो yes कह देगा, लेकिन अगर नहीं होगा तो हो सकता है रिजेक्ट कह दे, हो सकता है वो लूप करने लग जाए। ठीक है, that's what it's gonna do। Now remember, the goal of our machine that we construct, let's say the machine that we're going to construct is going to be LT. LT is the recognizer for L. तुम्हारी language है, it helps to still look at L as a problem. Don't look at L as a language, look at L as a problem। ठीक है ना, we're still looking at L as a problem। क्या h of n a से बड़ा है? Don't look at it as n comma a पढ़ रहे हो, look at it as is h of n greater than a। ठीक है ना, it's about how you think about it। ठीक है, now we have to construct a recognizer for this language। A recognizer for this language will say yes अगर h of n a से बड़ा है। ठीक है, a recognizer for this language will say yes if h of n a से बड़ा है, and it will say no if h of n a से छोटा है। इस मशीन, जो ट्यूरिंग मशीन हम बनाएंगे, उसके दो इनपुट्स होंगे, n होगा और a होगा, और वो क्या करेगा, वो बताएगा आपको कि इज द नंबर ऑफ n स्टेट ट्यूरिंग मशीन दैट हॉल्ट ऑन द एम्प्टी स्ट्रिंग ग्रेटर देन a और इज इट नॉट ग्रेटर देन a। अगर वो ग्रेटर देन a नहीं है तो फिर आपका लाजमन नहीं है कि वो हॉल्ट करे, आपको अलाउड है दैट यू आर अलाउड टू लूप, भले तुम लूप करते रहो। ठीक है, अगर वो a से बड़ा है तो फिर आपको लाजमन हाँ कहना है, सो यू हैव टू स्टॉप एंड यू हैव टू से यस। So how am I going to make a machine for this? The machine for this is very similar to what I did before। वहाँ पे हम क्या इस्तेमाल करते हैं, हॉल्टिंग। अब हम हॉल्टिंग नहीं इस्तेमाल कर सकते, हॉल्टिंग डिसाइडेबल नहीं है, तो वी आर नॉट अलाउड टू यूज दैट इन आवर मशीन। ठीक है, now the Turing machine I'm going to make, we'll call that let's call that T of L actually, Turing machine for L। ठीक है, so I'm going to make T of L। T of L कैसे काम करेगा? ठीक है, दिस रिप्रेजेंट्स आवर मशीन एंड इट्स वर्किंग। ठीक है ना, TFL को क्या इनपुट मिला है, n मिला है और a मिला है। n is the number of n is the number of n is basically how many states you are considering for Turing machines। आपको पता है there is a finite number of states, a finite number of Turing machines that have n states, and that number is r, sorry अबे भाई, number of n state TMs। ठीक है, so we are still considering M1, M2, M3 all the way down till MR। ठीक है, अभी तक fairly straightforward, I haven't done anything complex, I've just listed out all the machines। now we can make the encodings of all these machines। ठीक है, just convince yourself of this fact कि हम सारी की encodings तो बना सकते हैं, कोई बड़ा काम नहीं है, there's a finite number of encodings और आप बस उनकी encoding बना रहे हो। ठीक है, these are all the n state Turing machines that we consider। हमारे इनपुट में n था, we made all the n state Turing machines। we don't have the halting वाली डिसाइडर अब, तो अब हमें खुद चलाना होगा। हमें अभी भी गिनना है और हमें बताना है कि यार क्या इसका गिनती किसी वैल्यू से बड़ी है या नहीं। हम क्या करेंगे, अब इसको चलाने लगेंगे उसी इनपुट पे, सॉरी लैम्डा इनपुट पे। इसको भी चलाओ, इसको भी चलाओ, इसको भी चलाओ। नाउ अगेन वही की आइडिया है, डू नॉट रन दिस पूरा फर्स्ट, बिकॉज हो सकता है ये भाई साहब हॉल्ट नहीं करें, तब आप कभी इस पे आओगे नहीं, आपकी ये मशीन जो है हर वक्त इन्फिनिट में आ जाएगी। अगर आपकी पहली वाली इन्फिनिट था, लूप में आ जाएगी। तो हम क्या करेंगे, सबको बारी बारी चलाएंगे, सबको एक 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 सबको एक एक। सो इसका 1 स्टेप हुआ, फिर इसके 2 स्टेप्स हुए, फिर इसका 3 स्टेप्स हुए। स्टेप से मुराद क्या है, आपने पढ़ा, आपने कुछ लिखा और आप लेफ्ट या राइट गए, दैट इज 1 स्टेप ऑफ अ ट्यूरिंग मशीन। ठीक है ना, सो वी आर रीडिंग एवरीथिंग पैरेलली 1 by 1। ठीक है, अब all you're going to do is every time a machine makes a step and it halts, you're going to increase the counter by 1। आपका कहीं काउंटर चल रहा होगा इस ट्यूरिंग मशीन के अंदर, you're going to increase the counter by 1। ठीक है, अब देखो हमारे पास
let's say the number of n state Turing machines, let's say this, ये जो machine चल रहा था, कोई भी हमने एक final, let's consider an instance of n, कोई आप 7 ले लो 10 ले लो, doesn't matter, let's say n कोई भी number था, उसके अंदर फर्ज कर लीजिए h of n का एक्चुअल आंसर था 70, ठीक है, h of n is 70. अगर मैंने a दिया होता 60, अगर मैंने a दिया 60, हम कर क्या रहे थे, हम हर मशीन को पैरेलली आगे आगे आहिस्ता आहिस्ता बढ़ा रहे हैं, और जब भी कोई मशीन होल्ड करेगी उस पर +1 करोगे, जैसी ये काउंटर ए से बड़ा हो जाएगा ना, आपकी मशीन रुक जाएगी और आंसर करेगी यस, सॉरी आंसर करेगी हाँ, बिकॉज दैट्स व्हाट आवर ट्यूरिंग मशीन हैज टू डू. आवर लैंग्वेज के अंदर होगा या नहीं होगा, आपकी ट्यूरिंग मशीन विल गिव यस और नो का आंसर ना. इस कंडीशन में द वे आवर प्रॉब्लम इज मेड, वी हैव टू आंसर आइदर यस और नो, कि इज h of n ग्रेटर देन a और इज इट नॉट ग्रेटर देन a. सो हमने क्या किया, हमने सबको चलाया, हमने जैसी कोई मशीन हॉल्ट हुई तो हमने फौरन काउंटर पे के पास गए और उसको एक बार बढ़ा दिया, फिर वापस रिज्यूम करते रहो अगले बाकियों को चलाना. ऑब्वियसली ये रुक गया तो उस पर चलाने की जरूरत नहीं है, लेकिन दैट्स इररिलेवेंट, यू कैन स्टिल रन दैट मशीन, डजंट रियली मैटर. ठीक है, सो नाउ व्हाट वी आर डूइंग इज वी आर जस्ट काउंटिंग ऑल द मशीन्स दैट आर हॉल्टिंग वन बाय वन. व्हाई इज दिस अ ट्यूरिंग रिकॉग्नाइजेबल मशीन? बिकॉज थिंक ऑफ इट, हमारा कोई नंबर है 60, लेट्स से द नंबर ऑफ मशीन्स दैट विल हॉल्ट इन दिस केस इवेंचुअली, अगर चलते रहो कभी ना कभी तो 70 तो हॉल्ट करेंगी ना, 71 नहीं हॉल्ट करेंगी. द 71th machine will never halt because there are only 70 machines, 70 such machines from this set of R machines that will halt. तो अगर मैं 60 दूंगा तो इवेंचुअली 60 मशीन तो हॉल्ट करेंगी ना, तो ये मशीन, ये जो ट्यूरिंग मशीन है, ये इवेंचुअली रुक जाएगी और आपको कह देगी हाँ. That is the recognizing part. That is the whole crux of the problem. We've essentially made a recognizer. आपका काम यहीं खत्म हो गया. If you have written just this much proof ना, then you have finished the question. But let's go on to see why this is a recognizer and not a decider. फर्स्ट कर लीजिए मैंने आपको 71 दिया होता, 71 दिया होता, ठीक है. अब जो है अगर मैं चलाते रहूँ वन बाय वन 70 मशीन्स विल इवेंचुअली हॉल्ट, ठीक है ना. काफ़ी हो सकता है काफ़ी देर लगे, लेकिन 70 मशीन्स तो रुक जाएंगी, ठीक है. देन नो मोर मशीन्स विल हॉल्ट. आप भले चलते रहो, काउंट कभी नहीं बढ़ेगा, क्योंकि देयर आर ओनली 70 मशीन्स दैट वुड एवर हॉल्ट. So that is the case in which our machine would actually not halt. But that's fine because we said that we just had to make a recognizer. So if h of n वाकई में a से बड़ा है, तो this will halt and it will say yes. ठीक है, halt भी करेगा और हाँ भी कहेगा. The machine has to be correct. अगर तुमने डिसाइडर में बस halter बना दिया कि हर चीज़ halt करते हैं, आपने डिसाइडर नहीं बनाया, ठीक है ना. You have to actually decide the language. लेकिन अगर h of n उससे छोटा है and you actually said 71, so you would still be waiting for the 71th machine to halt, and that would never happen. And that is why this machine would actually get stuck in a loop. That is why you've built a recognizer and not a decider. Technically, if you had made a decider for this, which is impossible, you would actually have still proven this question, because a decider is also a recognizer in itself. It's a combination of a recognizer and a co-recognizer, क्योंकि वो हर हाँ पे रुकता है और yes कहता है, और हर ना पर रुकता है और ना कहता है. Does everyone understand how the proof worked? Would anyone like me to go over any part again? ठीक है, I think everyone got this. This was a fairly easier proof. I'm moving on, सही है? ठीक है, now we're going to do the slightly harder version of this problem, which is part B, reduce halt to count. इसका मतलब है कि आपके पास ये वाली प्रॉब्लम दी जा रही है, सॉरी मैंने काफ़ी फजूल लिखा है. अब हमारी प्रॉब्लम थोड़ी फ़र्क हो गई है. इट्स द कंप्लीट ऑपोजिट ऑफ पार्ट ए. इट्स आस्किंग यू शो दैट हॉल्ट इज ट्यूरिंग रिड्यूसिबल टू काउंट. इफ यू वांटेड टू शो दिस, देन व्हाट डू वी हैव टू डू? हमारी प्रॉब्लम है हॉल्टिंग की, और हमें दिखाना है कि इफ आई वांटेड टू सॉल्व अ हॉल्टिंग प्रॉब्लम, व्हिच इज बेसिकली क्या कोई मशीन m
W कोई किसी इनपुट पर हॉल्ट करती है या नहीं करती, हमें ये वाली प्रॉब्लम सॉल्व करनी है. बट वी वांट टू मैप दिस प्रॉब्लम ऑन टू अ काउंट प्रॉब्लम. हमारे पास काउंट का डिसाइडर है, यूज दिस टू सॉल्व इसका आंसर. ठीक है, रिमेंबर व्हेन यू रिड्यूस फ्रॉम ए टू बी, यू मैप ए का इनपुट टू बी का इनपुट, और बी का डिसाइडर तो आप फर्ज कर लीजिए आपके पास है, उसका आंसर विल टेल यू ए का आंसर. ठीक है, सो हाउ वी गोना डू दिस. Now we want to make a machine for what? We want to make a machine for halt. So let's call that H. H की मशीन बन रही है अब. ठीक है, हमारे पास H ने क्या दिया, H का सॉरी H का इनपुट क्या था, H का इनपुट था M कॉमा M comma W, and we're being asked does M halt on W. That's all we're being asked. कोई मशीन, हमें कोई ट्यूरिंग मशीन की इनकोडिंग मिलेगी और हमें कोई स्ट्रिंग की इनकोडिंग मिलेगी और हमसे पूछा जा रहा है कि या क्या ये मशीन इस पर अगर चलाई जाती क्या ये हॉल्ट करती या नहीं, और हमें ये प्रॉब्लम सॉल्व करनी है यूजिंग द सोल्यूशन ऑफ काउंट. तो अब क्या करेंगे, अब हम सबसे पहले तो काउंट इस्तेमाल करना है. अब याद रखें काउंट करता क्या है, काउंट सिर्फ आपको बताता है कि डज एन एन स्टेट ट्यूरिंग मशीन sorry, what is the number of hn, what is the number of n state Turing machines that halt on the empty string. अब देखो ये वाली मशीन तो उस पर चलती है W पर, लेकिन हम जो चलाना चाह रहे हैं वो उस पर है empty string पर. सॉरी, हमारी जो काउंट की मशीन है that runs on the empty string. So how can you use that to find this answer. जब एक सेकंड में, ठीक है. So the first thing that H is going to do, the decider, we're making decider for H. सबसे पहला H क्या काम करेगा, M को चेंज कर देगा, कोई और मशीन बना देगा. हमारी मशीन पहले थी M, हम बना देंगे लेट्स कॉल इट M प्राइम. ठीक है, हमारी कोई मशीन बन गई M प्राइम. M प्राइम क्या करती है, M प्राइम को कोई भी स्ट्रिंग दे दो ना, कोई भी, वो क्या करेगी, M को लेगी ये वाली जिससे बनी थी और इसको चलाना शुरू हो जाएगी हॉल्टिंग पे. ठीक है, वो कोई भी, सॉरी एक सेकेंड, एंड सिंपली रन्स. हाँ सॉरी, ठीक है सॉरी. ये जो मशीन है, ये जो है, इट विल टेक एनी स्ट्रिंग एंड विल रन M ऑन W, नॉट ऑन एम्प्टी स्ट्रिंग, इट विल रन M ऑन W. वो ये वाली मशीन कोई भी स्ट्रिंग लेगी और इंस्टेड ऑफ रनिंग ऑन दैट स्ट्रिंग इट विल कॉल ये वाली मशीन जिससे वो बन रही है, द फादर मशीन. It will call M, which was our input, and it will start running it on MW. ठीक है, and if M halts, then this will halt. ठीक है, if M halts, तो ये वाली भी halt कर लेगी, and if this keeps running, then this will keep running, and if this rejects, this will reject. Sorry, this will also halt. ठीक है, तो ये वाली मशीन क्या कर रही है, ये वाली सबसे पहली मशीन सबसे पहला क्या काम करती है, M को W पे चलाना शुरू कर देती है. तो हमारी ये वाली मशीन इस पे चलनी शुरू हो जाएगी, और दिस मशीन विल ओनली हॉल्ट इफ दिस मशीन हॉल्ट्स. ठीक है, अब हम क्या करेंगे, वी आर गोना मेक ऑल द मशीन्स जिसकी लेंथ इसकी थी. ठीक है ना, सो फर्स्ट कर लीजिए
एम डब्ल्यू की लेंथ थी, एम डब्ल्यू की जो इनकोडिंग है, इट हैज़ लेट्स से के स्टेट्स, इसके अंदर नंबर ऑफ स्टेट्स ऑफ एम डब्ल्यू एम प्राइम वाज के, ठीक है। we're gonna ask काउंट से पूछेंगे यार कि हाउ मेनी मशीन्स आर देयर ऑफ के स्टेट्स जो एम्प्टी स्ट्रिंग पर होल्ड करती हैं, उसमें ये भी कंसिडर हो रही होगी, इसकी भी बात हो रही होगी कि ये क्या एम डब्ल्यू एम प्राइम को अगर एम्प्टी दिया जाता क्या ये होल्ड करेगा या नहीं, ठीक है। एंड दिस विल टेल यू सम आंसर। तो सॉरी, इसको मिटा देता हूँ, दिस गेटिंग अनक्लियर, हल्के नीचे बना देता हूँ। And now you're gonna run all the machines with k states, k states वाली machines run करना शुरू हो जाओ, mk1, mk2, mk3, ये जितनी भी machines हैं जिनकी n states हैं उनको रन करना शुरू हो जाओ, ठीक है। अब फर्ज कर लीजिए काउंट ने कुछ आंसर दिया, सॉरी, is this question gonna end? ठीक है, so now what you're gonna do is you're gonna run all of the machines of length mk, ठीक है ना। अच्छा, रिकैप ऑन व्हाट वी डूइंग, हमारे पास होल्डिंग मशीन ने क्या इनपुट लिया था, m लिया था और w लिया था, इट वाज बीइंग, एक सेकंड ब्रदर, यू आस्क्ड अ वेरी गुड क्वेश्चन। अच्छा, हमारा इनपुट क्या था, हमारे होल्डिंग मशीन में पूछा जा रहा था कि डज मशीन m होल्ड ऑन द इनपुट w। हमने सबसे पहले क्या किया, m से एक और मशीन बना ली m प्राइम, m प्राइम की कितनी स्टेट्स हैं, इट हैज़ k स्टेट्स, पहली बात तो ये है, जो मशीन बनेगी उसकी लेट्स कॉल द नंबर ऑफ स्टेट्स दैट न्यू मशीन हैड k, सबसे पहली बात तो ये है। अब देखें एम प्राइम करती क्या है, एम प्राइम कोई भी इनपुट लेती है, कुछ भी दे दो उसको, और वो एम डब्ल्यू चलाना शुरू हो जाती है, और अगर एम डब्ल्यू चलता है, अगर एम डब्ल्यू होल्ड करता है तो ये वाली होल्ड कर देती है, और अगर एम डब्ल्यू होल्ड नहीं करता तो फिर ये भी इन्फिनेटली चलते रहती है ऑब्वियसली। अगर एम डब्ल्यू इन्फिनेटली लूप करते रहेगा तो जाहिर सी बात है ये मशीन भी इन्फिनेटली चलते रहेगी, लेकिन अगर ये वाला एम डब्ल्यू होल्ड कर गई तो ये वाली एम डब्ल्यू भी होल्ड करेगी, सीधी सी बात है, ठीक है, उस इनपुट पर होल्ड कर लेगी। तो लेट्स से इस मशीन को तुम कोई इनपुट दो, लेट्स से उसको 1 मिला, उसको जैसे ही 1 मिला उसने कहा 1 जाए भाड़ में, मैं 1 का कुछ नहीं कर रहा, मैं m को w पे चला रहा हूँ, ठीक है। अगर m जो है w पर होल्ड करेगा तो ये मशीन भी 1 पर होल्ड कर जाएगी, ठीक है, और अगर m जो है w पर होल्ड नहीं करेगा तो ये मशीन भी m जो है m प्राइम जो है 1 पर होल्ड नहीं करेगी। नाउ लेट्स सी व्हाई दिस हेल्प्स अस। इस मशीन को जब लैम्डा स्ट्रिंग मिलेगा तब भी वो क्या कहेगी, लैम्डा जाए भाड़ में, लैम्डा का कुछ नहीं करना, मैं तो है m को w पे चलाऊंगी, वो अपने इनपुट को छोड़ेगी, वो m को चलाना शुरू हो जाएगा w पर। So when this machine gets the empty string, it starts running m on w. If m halts on w, so then this machine halts on the empty string. If m does not halt on w, then this machine does not halt on the empty string. सही है? Technically, if m halts on w, m will halt on every input. And if m does not halt on w, then this machine will never halt on any input. Is this clear to everyone? कोई चाहता है कि ये वाला पार्ट मैं दोबारा समझाऊं, बिकॉज दिस इज द क्रक्स ऑफ द प्रूफ, आफ्टर दिस इज द computation of how this will help us get to the answer of halt, but you understand why we are doing what we're doing. तो लोग आते रहे तो
Yeah, small recap, please. अच्छा, इरफान आपको कहाँ से रिकैप करवाऊँ? एक जनरलाइज के मतलब चल क्या रहा है, अभी अभी ज्वाइन किया है, ठीक सॉरी। है, अभी हम सॉल्व कर रहे हैं प्रॉब्लम आई डिडंट गेट व्हाट वी टुक m प्राइम। ठीक है, काफ़ी लोग कह रहे हैं रिपीट करो, आई गो ओवर इट वन मोर टाइम। पहले समझिए हमारी प्रॉब्लम क्या है, व्हाट इज द प्रॉब्लम वी आर सॉल्विंग। वी वांट टू रिड्यूस, दिस इज द प्रॉब्लम वी आर सॉल्विंग, पार्ट बी। शो दैट हॉल्ट, द हॉल्टिंग प्रॉब्लम व्हिच टेक्स इनपुट m and w and asks you क्या m w करेगी नहीं, and we have a problem t, sorry, a problem count, and we want to show that halt is Turing reducible to count. To show that halt is Turing reducible to count, what would we have to do? We would have to make a reducer, sorry, a decider for halt. इसका डिसाइडर बनाओगे इसको इस्तेमाल करके, ठीक है, तब ये जो है इस पे मैप हो जाएगा। सो यू विल एसेंशियली मैप योर हॉल्टिंग प्रॉब्लम टू अ काउंट प्रॉब्लम। हम कह रहे हैं कि अगर हमारे पास इसका डिसाइडर है तो हम इसका डिसाइडर बनाएंगे। अब इरफान हम इसका डिसाइडर बनाना लगे थे, हमारा हॉल्टिंग की प्रॉब्लम क्या लेती है, हम हॉल्टिंग का डिसाइडर बनाना चाह रहे हैं, हम हॉल्टिंग की डिसाइडर क्या लेता है, एक मशीन m लेता है ट्यूरिंग मशीन, एक स्ट्रिंग w लेता है, और वो आउटपुट करता है हाँ या ना। हाँ कब आउटपुट करता है, अगर m को w पर चलाओ और वो हॉल्ट कर जाए। m एक ट्यूरिंग मशीन है, w कोई स्ट्रिंग है, कोई भी इनपुट है, कुछ भी हो सकता है। पूछ रहा है, हॉल्ट बता रहा है कि क्या m w पर हॉल्ट करता है या यस और नो। इफ m halts on w, halting will say yes, m does halt on w. हाउ कैन हॉल्ट बी डिसाइडेड विद काउंट। एलन ट्यूरिंग आप थोड़े लेट आए हैं, हम शुरू में ही किया था, इफ़ यू वॉच द रिकॉर्डिंग तो आपको समझ आ जाएगा। सॉरी वे वाज आई, हाँ, सो एच इज जस्ट अ मशीन दैट टेल्स यू डज अ ट्यूरिंग मशीन एम हॉट ऑन डब्ल्यू। तो इरफान हम इसका डिसाइडर हम बनाना चाह रहे हैं, और हम इसके लिए क्या इस्तेमाल करेंगे, काउंट। काउंट क्या है, काउंट इज अ मशीन दैट टेल्स यू, काउंट टेक्स एन इनपुट n इज द नंबर ऑफ स्टेट्स ऑफ अ ट्यूरिंग मशीन। काउंट बताता है कितनी ऐसी n स्टेट ट्यूरिंग मशीन्स हैं, हाउ मेनी ट्यूरिंग मशीन्स आर देयर दैट हैव n स्टेट्स एंड हॉल्ट ऑन द एम्प्टी स्ट्रिंग। So think of all the Turing machines that are of n states. This is a finite number. All of the Turing machines जिसके पास सिर्फ n states हैं, उन सबको चलाओ empty string पर, और गिनो कितनी ऐसी हैं जो हॉल्ट करती हैं empty string पर। That is the value that count will tell you. Count का input होगा n and will output you h of n. That is the counting problem. आप इसका डिसाइडर इस्तेमाल कर रहे हो हॉल्ट के अंदर। तो इफ आई गिव यू n, यू वुड टेल मी h of n, आपके पास इसका आंसर है, और आप इसको इस्तेमाल कर रहे हो एज अ फंक्शन इन हॉल्ट। हमने सबसे पहली चीज़ क्या की है डिसाइडर के अंदर, हमने कहा कि हमें जो इनपुट मिला है ना ट्यूरिंग मशीन m, हॉल्टिंग डिसाइडर को जो वो इनपुट मिला है ट्यूरिंग मशीन का m, और पूछा जा रहा है कि क्या m जो है w पे हॉल्ट करेगा या नहीं। हमने सबसे पहले काम किया, जो m हमें मशीन ट्यूरिंग मशीन इनपुट में मिली थी उसको कन्वर्ट कर ली एक और मशीन में, लेट्स कॉल दैट m प्राइम। दिस इज अ चाइल्ड मशीन, ठीक है ना, दिस इज डिफरेंट फ्रॉम m। चाइल्ड मशीन क्या करती है, चाइल्ड मशीन फजूल है, कोई भी इनपुट लेती है ना, 1 हो 2 हो 3 है, कोई भी बाइनरी स्ट्रिंग हो, इरफान हो, मेरा नाम, कुछ भी हो, एम्प्टी स्ट्रिंग भी हो, वो कहती है वो इनपुट जाए भाड़ में, कुछ भी, इट डजंट केयर अबाउट दैट। ऑल इट्स गोना डू इज इट्स गोना स्टार्ट रनिंग दिस मशीन ऑन डब्ल्यू, ठीक है। और अगर ये मशीन डब्ल्यू पे रुक जाती है तो फिर ये वाली मशीन भी रुक जाती है, हॉल्ट कर देती है, कहती है हाँ या ना, इसका उसका इट डजंट मैटर क्या करती है, लेकिन वो रुक जाती है। और अगर m जो है, ये जब मशीन m w पे चला रही थी ना इन दोनों को, अगर ये नहीं रुकते और ये इन्फ्लुएंट लूप पे चलते रहते हैं तो लामाला ये भी इन्फ्लुएंट लूप में चलते रहती है, ठीक है। सो नाउ वी नो व्हाट m प्राइम द चाइल्ड मशीन डज। वो सीधा सीधा कोई भी स्ट्रिंग ले लिए, वो 0 1 2 एम्प्टी स्ट्रिंग कुछ भी आएगी, वो इसको इग्नोर करेगी और m को w पे चलाना शुरू कर देगी, और अगर वो हॉल्ट करेगा तो ये हॉल्ट करेगी, अगर वो हॉल्ट नहीं करेगा तो ये हॉल्ट नहीं करेगी। Does everyone understand this part? Because a few of you asked me to explain it again. अब तक सबको समझ आ रहा है? Saklan, you said I don't get why we took m prime. That is going to become apparent later. अभी आपको पता चलेगा क्यों मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ m prime. Does anyone want me to go over this one more time? Because if you don't understand the starting, you won't understand the end. अच्छा, तो फिर इसके अंदर ऐसा हो कि m जो है m के अंदर m प्राइम लिया और कोई भी हम लोगों ने ABCD कुछ भी लिया और वो m को w पे चला रहा है। हाँ, ये m prime का बस काम यही है। हुआ ना अब तक? हाँ, बस अभी तक ये हुआ है। हमने एक ओके, मशीन इनपुट थी उसकी, उससे एक और मशीन बना ली है, बस। वो मशीन अगर किसी चीज़ पे चलाई जाएगी तो वो MW करेगी, बस ये काम करती है, ठीक है। अब देखें, ओके।
अब अगर ये मशीन लैम्डा स्ट्रिंग पे चलाई जाएगी तो तब भी वो MW को ही चलाएगी। अगर MW हॉल्ट हो गया तो फिर ये वाली मशीन M प्राइम जो है लैम्डा स्ट्रिंग पर हॉल्ट कर देगी, और अगर ये वाली मशीन हॉल्ट नहीं करती तो फिर ये वाली मशीन M प्राइम जब लैम्डा स्ट्रिंग लेगी तो ये भी हॉल्ट नहीं करेगी। ठीक है, अभी तक बात समझ आ रही है? ठीक है, अब हम क्या कर रहे हैं, अब हम इसके जरिए से we're going to use this and we're going to use count wali problem, which just told you the number of machines that halt on the empty input. This is the count problem. That's all this does. It's a very stupid function if you think about it, related to our current problem. लेकिन it will help you. How will it help us? हमारी जो मशीन M से M प्राइम बनी है, this is a child machine. फर्स्ट कर लीजिए M प्राइम के अंदर K स्टेट्स थी। K हो सकता है 100 हो, हो सकता है 200 हो, 1000 समथिंग, बट सम फाइनाइट नंबर। हमने जो इनकोडिंग बनाई है उसके अंदर कोई फाइनाइट नंबर ऑफ स्टेट्स होंगी, उसका नंबर ऑफ स्टेट्स है K फर्स्ट कर लीजिए। ठीक है, हम क्या करेंगे, वी विल स्टार्ट रनिंग ऑल ऑफ द पॉसिबल K स्टेट ट्यूरिंग मशीन्स। ठीक है, लेट्स से K was 7, so we are running all of the Turing machines that have 7 states. हम 7 Turing machines को नहीं चला रहे, we are running the number of Turing machines, let's call that number R. R is the number of Turing machines with number of states equal to K. K was the number of states of this machine. ठीक है, तो इसका मतलब है इनमें से कोई एक मशीन जो है M प्राइम भी होगी। जी हाँ, अब तक समझ आ रहा है? Is there anyone who didn't understand what I just said? ठीक है, this is a fairly simple concept. All we've said is we are running all of the K-state Turing machines. One of these will have to be M prime, हमारी जो चाइल्ड मशीन थी। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अब हम पूछेंगे h of n से, h of n से पूछेंगे h of k क्या होता है। फर्स्ट कर लीजिए, उसने कहा the number of K-state Turing machines that halt on the empty input is 51. ठीक है, so there are 51 machines that will halt on edge of on K or with K on the empty input. ठीक है, अब देखो हमारी जो ये मशीन थी इसका decision of whether this guy will stop on the empty वाला, it depends on this. So इसका आंसर depends on इसका आंसर। तो अब हम क्या करेंगे, अब फर्स्ट कर लीजिए इसने कहा 51, we will start running all of these R machines, सबको पैरेलली चलाओ until 51 of them halt. ये तो आपको पता है हम किस तरह चेक करते हैं कोई चीज़ होल्ड कर रही है, ऊपर आपने देखा था, बस कीप रनिंग, जैसे ही होल्ड करा एक काउंटर मेंटेन करो +1 अंटिल दैट काउंटर इज इक्वल टू 51। हमें पता है कि 51 इनमें से तो होल्ड करेंगी बिकॉज h of k हमें पता है 51 है। देयर आर 51 k स्टेट ट्यूरिंग मशीन्स दैट होल्ड ऑन द एंट्री इनपुट, तो 51 ऑफ दीज विल इवेंचुअली स्टॉप। ठीक है, जब 51 इनमें से रुक जाएंगी ना, हमारा काम खत्म। अब हम क्या करेंगे, हम सारी मशीन से थ्रू जाएंगे जो रुकी हुई हैं और उनसे पूछेंगे क्या आप MW है, M प्राइम है? नहीं, अगली मशीन पे जाओ जो रुकी थी। क्या आप M प्राइम है? नहीं, अगली मशीन पे। यू विल आस्क ऑल द मशीन्स दैट हैव हॉल्टेड, क्या आप रुकी थी? फर्स्ट कर लीजिए M प्राइम मिल गई आपको, आप 51 से पूछोगे, अगर 51 से आपने सबको पूछ लिया तो उसका मतलब है M प्राइम ने हॉल्ट नहीं किया। लेकिन अभी फर्स्ट कर लीजिए कि M प्राइम आपको मिल गई कि यार हाँ ये हॉल्ट कर गई है। व्हाट डज दिस टेल यू? दिस टेल्स यू दैट हमारे जो मैपिंग थी ना ऊपर यहाँ पर M जो है M प्राइम जो है एम्प्टी स्ट्रिंग पर होल्ड करती है, जिसका मतलब है M जो है W पर होल्ड करता है। ठीक है, I'll say it once again. Once we started running all of the K-state Turing machines and we found that 51 of them had stopped. 51 हमें कहाँ से पता चला? h of n से, काउंट वाली प्रॉब्लम से, उसका डिसाइडर हमारे पास था। That's why we could do this. हमने उससे पूछा कि कितनी रुकती हैं, उसने कहा 51 रुकती हैं। 51 मशीन हमने वेट किया रुकने के लिए। Then we said अच्छा let's go through all of the machines that have stopped and ask them are you M prime? If you found M prime in this set, then that means M prime halts on the empty string, which means that M halts on W. Does everyone get this proof? Is there anyone who missed any part of this? कुछ ना समझ आया, कुछ unclear हो, दोबारा रिपीट करूं? If you want me to start from the starting, I'll do it all over again.
एक सेकंड, ये जब ये फला नंबर पे पहुंचा, हमने सारे मशीन से पूछा कि इनमें से एम प्राइम कौन सी है ना? हाँ, हमने जो मशीन जो रुक चुकी थी ना, हमने उनसे पूछा आप में से कोई एम प्राइम है? हमें पता है इनमें से एक तो कोई एम प्राइम था, हो सकता है वो हॉल्ट हॉल्ट वाले सेट में था, या हो सकता है नहीं था, बिकॉज दिस वाज ऑल ऑफ दीज वर द के स्टेट मशीन्स ना, द नंबर ऑफ मशीन्स दैट हैव के स्टेट्स। हमारे पास एम प्राइम की कितनी स्टेट थी? के थी। हमने इसीलिए सारी एम के को कंसिडर किया। वी वेंट थ्रू ऑल ऑफ द एम केज, सबको चलाया साथ, जब तक 51 रुक गई। फिर जो रुकी हुई थी उनसे पूछा गया आप में से एम प्राइम है? अगर एम प्राइम नहीं रुका तो इसका मतलब है एम प्राइम जो है एम्प्टी स्ट्रिंग पे नहीं रुकता, तो इसका मतलब है एम जो है डब्ल्यू पे नहीं रुकता। तो हमारे पास आंसर आ गया हॉल्टिंग मशीन का। तो इन्फिनिट पे चलेगा। तो हाँ, वो अगर वो हॉल्ट नहीं किया एम प्राइम लैम्डा स्ट्रिंग पे, तो मतलब एम डब्ल्यू पे हॉल्ट नहीं करता। तो हमें हॉल्टिंग प्रॉब्लम का आंसर पता चल गया। ओके ओके ओके। Does anyone else want me to go over anything again? जरा सा भी अनक्लियर है कह दो, ट्यूटोरियल आप लोगों के लिए ही है। ठीक है, दैट मीन्स आई एम गेसिंग एवरीवन गॉट द प्रूफ। तो होपफुली अगर ऐसा कुछ आया, समझ नहीं आया बट इट्स ओके, पूरा पूरा टू नहीं आ रहा, खैर ठीक है। वील मूव ऑन टू अनदर प्रॉब्लम। अच्छा, लेट मी सी कि हमें कवर क्या करना था। सो आई सेड वी वुड कवर डिसाइडेबिलिटी, रिकग्नाइजेबिलिटी एंड को-रिकग्नाइजेबिलिटी। Is there anyone here who wants me to go over the definitions of decidability, recognizability and co-recognizability, or the proof of the halting problem one more time? Because a lot of students said in the starting कि हमें theory नहीं कराएं, halting problem I was gonna do it with you. It's a very key argument in why a problem is undecidable and why the halting problem is undecidable. अगर कोई चाहता है I can do that once more time, like in this meeting as well. अच्छा, एक बंदे ने हाँ कहा है, थोड़े से और मिल जाए तो मैं कर देता हूँ, क्योंकि यहाँ पे कुछ 46 लोग हैं। अगर एक कह रहा है तो एक से ज़्यादा कहेंगे तो थोड़ा तो बनता है। ठीक है, सो व्हाट यू गाइस वांट मी टू गो ओवर, रिकग्नाइजेबिलिटी, डिसाइडेबिलिटी और को-रिकग्नाइजेबिलिटी, या हॉल्टिंग वाला प्रूफ? हॉल्टिंग का प्रूफ इज वेरी स्मॉल, वेरी शॉर्ट, यू कैन गेट इट वेरी सिंपली। इट्स अ वेरी क्रूशल प्रूफ बट यू कैन डू इट। हॉल्टिंग प्रूफ, ठीक है, लेट्स डू हॉल्टिंग प्रूफ। ठीक है, halting problem हमने इस्तेमाल किया है, so I'm assuming all of you are familiar with what the halting problem is. It takes as input m comma w and it outputs 0 or 1. If this guy halts on w, then this guy says yes, halt करता है. If m does not halt on w, if m when you run it on w does not halt, it says 0 कि हाँ ये halt नहीं करता. Why is this undecidable? फर्ज कर लीजिए कि halt का decider होता था, ठीक है ना, and you could have a machine, let's call that machine Turing machine H, ठीक है। हम क्या करेंगे, हम एक और मशीन बनाएंगे D। D क्या करता है, D टेक्स अ मशीन, ठीक है, D को मशीन मिलती है, सॉरी, D को एज इनपुट मिलता है कोई मशीन की इनकोडिंग, और वो कहता है हाँ या ना। हाँ का क्या, सॉरी अरे यार तो उल्टा लिख देता हूँ मैं, एक सेकंड, मैं बेल पकड़ के, एक सेकंड सॉरी। ठीक है, so we were making a new machine D. What does D do? D takes an input M. M is some Turing machine. So as its input, it takes some valid encoding of a Turing machine. उसको कोई मशीन मिलेगी एज इनपुट, और वो कहेगी हाँ या ना। हाँ कब कहेगी? हाँ तब कहेगी अगर M को अपनी इनकोडिंग पे चलाया जाता। M को अपनी इनकोडिंग दी जा रही है, ठीक है। सॉरी मैं अब तक ये इनकोडिंग का नहीं डाल रहा था, इट्स द सेम थिंग एज दिस। अभी भी इनकोडिंग है, यहाँ भी इनकोडिंग, कुछ फर्क नहीं हुआ है, ठीक है ना। DM क्या करती है, M को M पर चलाती है और पूछती है कि क्या M अपनी इनकोडिंग पर हॉल्ट करता है या नहीं। अगर वो हॉल्ट करता है तो फिर ये मशीन कहती है यस, और अगर M जो है अपनी इनकोडिंग पर हॉल्ट नहीं करता तो वो कहती है नो। तो सब, does everyone understand what DM is doing? DM is basically telling you
डज एम हॉल्ट ऑन इट सेल्फ ऑन इट्स ओन इनकोडिंग? अगर एम को अपनी पूरी मशीन की इनकोडिंग दी जाती, क्या ये रुकती या ये नहीं रुकती? दैट्स ऑल इज डूइंग. डज एवरीवन गेट व्हाट डी इज? ठीक है, आई एम मूविंग ऑन. ठीक है, नाउ व्हाट यू गोना डू इज यू गोना यूज डी टू मेक अ कॉन्ट्रडिक्शन. And acha, how does actually how do we know that we can actually make a machine D? Well, because we're assuming that halt exists. कि halting problem की machine exist करती है. So D doesn't actually run M on M. D just asks the halting problem कि क्या मैं M को M पर चलाता तो ये रुकती? अगर ये ना रुकती तो ये DM कह देगा नहीं, और करती है तो वो कहती हाँ. सॉरी एक सेकंड, आई थिंक उल्टा होता है. द डीएम डी सेज उल्टा. एक सेकंड. मेरे ख्याल से उल्टा होता है. ठीक है, खैर पता चल जाएगा. हाँ, सो व्हाट डी डज इज डी को जब कोई इनपुट दिया जाता है ना एम, तो वो पूछती है क्या एम को अपने ऊपर चलाओ तो हॉल्ट करता है. हॉल्टिंग मशीन से पूछती है इफ आई रैन एम ऑन एम वुड इट हॉल्ट. इफ ही सेज यस तो तब ये कहता है नो. सो तब ये लूप करने लगती है. इफ एम हॉल्ट्स ऑन एम तो फिर डी जो है लूप करने लगती है. एंड इफ एम डज नॉट हॉल्ट ऑन एम, यानी इफ दिस गाय गोज इन इन्फिनिट लूप, तो फिर ये जो है रुक जाता है. ठीक है, ये उल्टा काम करता है. ये एम से पूछता है क्या एम अपने पे हॉल्ट करेगा. अगर एम अपने पे हॉल्ट करता है तो फिर डी ऑफ एम हॉल्ट नहीं करता. और अगर एम अपने ऊपर नहीं हॉल्ट करता, यानी इफ यू रैन एम ऑन इट्स ओन इनकोडिंग एंड इट वेंट इनटू एन इन्फिनिट लूप, देन डी वुड हॉल्ट. ठीक है, नाउ all you have to do is you have to pass D itself. अब D से पूछा जा रहा है कि अगर मैं अपने आप को अगर D को अपनी इनकोडिंग मिलती, so now what will D do? Now D will start running. Now D will ask the halting problem. सब D क्या करता था, halting से पूछता था ना कि कोई मशीन M मिली थी, वो halting से पूछता था कि अगर M को चलाना है अपने ऊपर तो वो हॉल्ट करता है या नहीं. तो वो वही काम करेगा, हॉल्टिंग से पूछेगा कि क्या डी की मशीन को डी की इनकोडिंग मिलेगी तो वो हॉल्ट करेगी. तो अगर इसने कहा 0 नहीं हॉल्ट करेगी, तो फिर ये जो है हॉल्ट कर लेगा. और अगर इसने कहा हाँ ये हॉल्ट करती है, डी जो है डी पर हॉल्ट करता है, तो फिर ये जो है इन्फिनिट लूप में चला गया. एंड दैट इज आवर कॉन्ट्रडिक्शन. हमने डी क्या करता था, डी टेल्स यू कि डी अपनी इनपुट पर हॉल्ट करता है या नहीं. सो आई राइट आउट द स्टेट्स ताकि क्लियर हो जाए कि कॉन्ट्रडिक्शन क्यों है. फर्स्ट कर लीजिए, हॉल्टिंग ने कहा होता कि डी जो है अपनी इनकोडिंग पर हॉल्ट करता है. तो फिर डी क्या कहता, 1 कहता. लेकिन 1 का तो मतलब है कि डी अपनी इनकोडिंग पर हॉल्ट नहीं करता है ना, उल्टा काम हो गया ना. डी क्या करता है, डी पूछता है कि क्या एक मशीन अपनी इनकोडिंग पर हॉल्ट करेगी या नहीं. इफ इट डज नॉट हॉल्ट देन डी हॉल्ट्स. इफ अपनी इनकोडिंग पर वो हॉल्ट नहीं करता तो डी डज हॉल्ट, तो उल्टा काम करता है. सो नाउ वी हैव कंस्ट्रक्टेड आवर कॉन्ट्रडिक्शन कि जो भी वो आंसर कहेगा उसका आपने झूठ कहा हुआ है यहाँ पे. डज एवरीवन सी द कॉन्ट्रडिक्शन हियर? सॉरी मैंने ये लिखा हुआ है, आई शुड से हॉल्ट एंड नॉट हॉल्ट. ठीक है, डज एवरीवन सी द कॉन्ट्रडिक्शन हियर?
That's it. This is the whole proof of why the halting problem is not decidable. Because if you had a decider for halting, then you could actually make a contradictory machine D. So we know that the production, that the existence of D is impossible, which because the existence of halt is impossible. Because if halt was producible, then D would be producible, which would allow for contradictions in our world. And contradictions तो नहीं हो सकती. ठीक है? Let's move on to the other questions. अच्छा, अब हमारे उसमें और क्या रखा है बकाया काउंट था. अच्छा, would you guys like to look at countability now? या दूसरा क्या था मेरे पास? NP hard reduction. अब तो एक बंदे ने कहा NP. Are there any other suggestions? Do people want to do countability? I have a count. अच्छा, I have the PSET वाला. because PS2 के अंदर क्या था? हाँ, IJK जो नेचुरल नंबर है, AIBJCK, is that countable or not? ठीक है. So one person says NP लास्ट में करवा दो. NP तो अभी तक इक्वल है. इरफान और एहसन कह रहे हैं काउंट मतलब नॉट NP. कोई और कुछ कहेगा? डू पीपल प्रेफर रिडक्शन? इरफान, रिडक्शन के हमने 3 कर लिए, ये 2 कर लिए एटलीस्ट. रिडक्शन के आई डोंट थिंक मेरे पास और हैं. अगर हो गए मैं करा देता हूँ. लेकिन वील नहीं, इरफान उसका वो है, वो रिकॉर्डिंग है, इसकी भी रिकॉर्डिंग आपको मिल जाएगी. ठीक है. सो वील मूव ऑन विद काउंटेबिलिटी फर्स्ट, बिकॉज काउंटेबिलिटी इज एन ईजियर टॉपिक देन रिडक्शन. लेट्स गो ओवर काउंटेबिलिटी जल्दी से एंड देन वील डू रिडक्शन. ठीक है. अच्छा, कैन यू सी द स्क्रीन? ठीक है. This is the question we're doing. This language is countable. ठीक है. Now we'll see why this language is countable. I'll just write this on the screen. एक second. T is of the language AIBJCK such that I, J, K are all part of the natural numbers. Now natural numbers are just like the integers, लेकिन I think they start from 1, तो 0 नहीं होता. कोई कंफर्म कर सकता है, लेकिन आई एम प्रीटी श्योर इट्स द सेम एज इंटीजर्स, या आई थिंक 0 नहीं होता. कहा जा रहा है कि दिखाएं कि T जो है काउंटेबल है. ठीक है. नाउ आई स्विच बैक टू ठीक है. सो दिस इज आवर प्रॉब्लम. तो हमारे सेट के अंदर देखिए स्ट्रिंग्स किस तरह की होंगी. वी हैव टू हैव एटलीस्ट 0 बिकॉज IJK बिलोंग टू द सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स. तो ये 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2, एंड ईच ऑफ दीज आर नेचुरल नंबर. So IJK will all be greater than equal to 1 and they will be integers. That's a very key part, because if they are real numbers, then this would not be countable. ठीक है. अब देखिए हमारा कोई भी जो स्ट्रिंग है AIB, let's say 2 और C3 लीजिए, ऐसे ले लीजिए. जरूरी नहीं है ऐसे इंक्रीजिंग ऑर्डर, just has to be any numbers as long as all of them are integers and they're all natural numbers. ठीक है ना. हमारा कोई भी स्ट्रिंग होगा, it will have some number of A's which is I, some number of B's which is J, and some number of C's which is K. So you can actually map any string A, I, B, A, G, K. You can just make it a vector of I, J, K. I hope you know what this means. This is basically the set R3. Sorry, Z3. Z3 is basically all of the 3 tuple integers. टपल से क्या मुराद है? हमारा जो कार्टेशियन प्लेन होता है XYZ वाला, ये ऐसा होता है ना,
1 2 3 4, आपके जो पेयर्स क्या होते हैं, कोई कोऑर्डिनेट सिस्टम दो, 0 0 हो सकता है, 1 1 हो सकता है, 2 2 हो सकता है, 1 7 3 1 3, ये जो है ना, ये पेयर्स हैं। अब हमारे ग्राफ के अंदर डेसिमल्स हम समझो, डेसिमल्स अलाउड नहीं है, डेसिमल्स अलाउड नहीं है, ओनली इंटीजर्स। सो यू कैन नॉट से 1.5 3। These are all the integer pairs. Pair का मुराद है 2. So 2 tuples. The 2 tuple is called this Z2. So Z2 is all the pairs of integers. That's what Z2 means. Z3 is all the 3 tuples of integers. So integer 1, integer 2 और integer 3 कोई इस तरह का पेयर है, ठीक है? Does everyone understand what Z3 and so far what we've done is? Z3 और Z3 क्या होता है, ऑर्डर टपल क्या होता है, ठीक है? We'll move on now. सही है? So any string that I have of I, AI, BJ and CK can actually be expressed as simply a 3 tuple of I, J, K. आपने उस नंबर को एक बेसिकली एक वेक्टर के अंदर डाल दिया, ठीक है ना? इट्स बेसिकली a coordinate almost, and this is basically a coordinate on a 3-dimensional graph, ठीक है? अब हम क्या करेंगे? Do you guys know the proof for 2 tuple की countability? The proof of 2 tuple की countability where both of them are positive goes like this. काउंटेबिलिटी का पहली बात आप मतलब समझे, काउंटेबिलिटी होती क्या है? काउंटेबिलिटी का मतलब है हमारे पास कोई सेट है, उसके अंदर कोई नंबर्स है। लेट्स से हमारे पास द मोस्ट ऑब्वियसली काउंटेबल सेट इज द नंबर ऑफ फाइनाइट, द नंबर ऑफ इंटीजर्स, ठीक है ना? दैट इज अ काउंटेबली इन्फिनिट सेट, ठीक है? द नंबर ऑफ इंटीजर्स दैट एग्जिस्ट इन द वर्ल्ड is infinite, but it's countable, and that's the definition of any countable set. If there is a bijection that maps a set onto, if there's a bijection that maps the numbers, the natural numbers onto a set, then that set is countable. So basically आप कह रहे हैं कि हर नंबर को every value in your new set जिसको आप countable prove करना चाह रहे हो, can I map that to a number? क्या मैं हर किसी को एक एक नंबर दे सकता हूँ? अगर मैं हर किसी को एक एक नंबर ऐसे असाइन कर सकता हूँ ऑर्डर में, तो मैं एक काउंटेबल सेट हूँ। नाउ हियर्स वन वे टू असाइन एवरी वैल्यू अ नंबर। लुक एट दिस इज R2, दिस इज R2 प्लेन, ठीक है? दिस इज R2, दिस हैज 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5. Now look, every 2 pair I, let's say it was only I, J. क्या इस सेट को मैं बनाना चाह रहा हूँ काउंटेबल, ठीक है? अगर मुझे इसको सेट काउंटेबल बनाना है, लेट्स लुक एट इट आई जे एज अ ग्राफ। तो एक आई जे ये होगा, एक आई जे ये होगा, एक आई जे ये होगा, एवरी पॉसिबल कॉम्बिनेशन विल बी एन आई जे, है ना? एंड आई वांट टू आर्ग्यू कि इज दिस एंटायर सेट काउंटेबल? If you want to count an entire set, you have to do exactly that. Just find a way to do it without ever, running into an infinite row. And I'll explain what that means. फर्स्ट कर लीजिए, आप इनको काउंट करने लग रहे हैं यहाँ से, आपने इसको नंबर 1 दिया, फिर आप यहाँ पे गए, इसको नंबर 2 दिया, फिर आप यहाँ पर गए, इसको नंबर 3 दिया। फर्स्ट कर लीजिए हम आगे ऐसे बढ़ते गए। इफ आई गिव अ काउंटिंग, वुड एवरी नंबर गेट a number in this counting? Would this form of numbering give every number an integer? No. Why? Because हम एक ही रो में जा रहे हैं ना, तो हम 1 देंगे, फिर 2 देंगे, फिर 3 4 5 6। नाउ लुक, हो क्या रहा है? हम क्या कर रहे हैं, हम हर टपल को एक नंबर दे रहे थे, लेकिन द वे वी वर विजिटिंग द टपल्स वाज बैड। बिकॉज लुक, दिस इज द टपल 1 1, दिस इज द टपल 2 1, 3 1, 4 1, 5 1, ऐसे चलते रह रहे हैं all the way to infinity. So this ordering will only touch this row. हम कभी इस रो पे आ ही नहीं पाएंगे। Our system should have been in such a way कि हम एक रो को खत्म करें और फिर अगली पे चले, फिर अगली खत्म करें, फिर अगली पे चले, such that we cover the entire set. If you can number them like this, such that it is illegal, such that your procedure touches every point and gives everyone a number, 1 2 3 4 सबको करते करते सबको टच करता है, then your counting would be legal. But this doesn't touch everyone. But there is another way to do it. आप 1 1 करो, फिर जैसी आपकी वैल्यू सेम हो जाए ना, तो फिर आप एक्स एक्सेस को बढ़ा लो, ये ऐसे, फिर आप यहाँ पे जाओ, फिर आप यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे,
फिर आप यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, ठीक है। आप कर क्या रहे हो? What you're going is you're going in a fashion that touches all of the numbers, and I'll formally write down कि हम कर क्या रहे थे। ठीक है, आपने शुरू किया यहाँ से, आपका 1 1 रीच हो गया ना, अगले पे जाओ 2 के साथ, 2 के साथ 1 आ सकता है, 2 के साथ 2 आ सकता है। अगले पे जाओ 3, 3 के साथ 1, 3 के साथ 2, 3 के साथ 3। अब 4 पे जाओ 4, 4 के साथ 1, 4 के साथ 2, 4 के साथ 3, 4 के साथ 4, ठीक है। देन 5, 5 के साथ 1, 5 के साथ, सॉरी हम किस तरह जा रहे थे, इस तरह, सॉरी इस तरह जाना चाहिए था। 1 इस तरह, नेक्स्ट व्हाट वाज द एक्चुअल ऑर्डरिंग? So you would go to 1 1, and then you go to 1 2, and then you would go to 2 1, then you would go to 3 1, ऐसे ऐसे ऐसे। एक सेकेंड, क्या कर रहा था ये? 1 1 2 1 3, okay, 1 1, and then 2 1, 1 1, 1 2, 2 1, and then 3 1, अब ऊपर गए, and then you would go to 2 2। अच्छा सही, अब ऐसा ठीक है, यहाँ पे गए, अब ये ख़त्म हो गया तो यहाँ पे गए, फिर ऊपर, फिर यहाँ पर और यहाँ पर, फिर ऊपर, फिर यहाँ पर, फिर यहाँ पर, फिर आगे, फिर ऊपर। अच्छा अच्छा सही है। सो यू गो इन वन डायरेक्शन अंटिल यू मीट ऐसे 1 2, एंड यू स्टार्ट गोइंग उसी डायरेक्शन में टिल यू हिट द टॉप। एक ऊपर, फिर डायगनल जाओ, फिर एक ऊपर, फिर डायगनल जाओ, फिर एक ऊपर, एक डायगनल जाओ, फिर एक ऊपर, एक डायगनल जाओ। तो इस तरह व्हेन यू काउंट, व्हेन यू टच ऑल ऑफ द नंबर्स इन दिस वे, then you have essentially made a sequence of visiting all of the numbers in the set one by one. Keep in mind that the way you did this was to make sure that एक रो के अंदर हम जाते नहीं रहे, हम इस तरह नहीं जा सकते, ये हम इस तरह नहीं जा सकते, because then you would end up not counting all of the sets. So now how would you show that this set is countable? All you have to do is shift this to have one more value. तो जहाँ हम 1 1 और 1 2 कर रहे थे ना, तो अब एक और डिमेंशन आ जाएगी। अब उस डिमेंशन के अंदर भी आप जब यहाँ पे चले और यहाँ पे चले और यहाँ पे चले, अब उस डिमेंशन के अंदर भी चलना है, उसके सारे करके इस तरफ इस पे आना है। तो व्हेन यू आर डूइंग 1 1 1 2, और फिर आप यहाँ इस शुरू किया, यहाँ पे गए, दूसरी डायरेक्शन में गए, फिर ऊपर गए, यू वुड वांट टू गो टू द अदर डायरेक्शन एज वन एज वेल।